Good morning, everyone. So today we are going to start with your 12th chapter. That is what? Improvement in food resources, right? We'll discuss about the introduction part, as well as this chapter is divided into, you can say, two parts. One is dealing with agriculture and other is dealing with what? Animal husbandry. Okay. So let's start with what? Agricultural part. So as it is clear with this image, by the agricultural practices and all, obviously we are getting what? Good production, good yield of what? Crops. And through the animal husbandry, through which we can take proper care, management, cleanliness, their hygienic condition, right? Giving them medical assistance. That is related to what? Animal husbandry, because through animals we are getting maximum products. Fine. So that also we are going to deal. But today we are going to deal with some specific topics related to the agriculture, related to the crop yield. Fine. So let's start the introduction part. So first of all, as we know that the food which we consume or the food which we eat come from different sources. So what are the main sources? Plant and animal sources, right? So obviously food supplies which type of nutrients? Carbohydrates, proteins, fats or lipids, vitamins and minerals, right? So these are very important nutrients which are provided by what? Which we get from the food only that we eat or that we consume. So obviously through this particular, what you can say, nutrients and all, we get what? Energy, as well as they are required for development of the body, growth of the body, repair of the cells and tissues and all. So for everything we require nutrition, which we get from various food sources. So about that food sources only we are going to discuss in this particular chapter. Fine. Next point is about what? Agriculture and animal husbandry. As I have already told you, okay, through this agriculture and animal husbandry only, these are the major, you can say, sectors and all, which is the main source of food. So we should know about agriculture also, and we should know about the products which are related to animals also, or which we get from the animals. Okay. India needs over 250,000 tons of grain annually, obviously. So as we all know that our country, India, right? So they are mainly engaged in which sector? Agriculture sector. More than 70% of the people are engaged in agriculture sector. So obviously the demand for the food supply and all also goes on increasing as we have as the population of our country is very high. So the food demand is also high. And if the food demand is high, supply should also be high only. So for that reason, we need to produce the crops in high amount. है ना? ज़्यादा से ज़्यादा amount में crop का production ज़्यादा होगा, yield ज़्यादा होगा, तो obviously we can satisfy the needs of the growing population. Fine, as day by day population is increasing day by day, so demand of the food is also increasing that much only. So for that reason we want good food supply that we get from what? Plant as well as animal sources. तो जो प्लांट्स का प्रोडक्शन आपको करवाना है, तो ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह यूज नहीं किए हैं, एज सच इंप्रूवमेंट नहीं लाया है, राइट, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, सो व्हाट कैन हैपन? ऑब्वियसली ये जो फूड रिसोर्सेज है, ये क्या हो सकता है? इनका शॉर्टेज हो सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस व्हाट यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल इज नेसेसरी. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, कल्टिवेबल लैंड इज लिमिटेड, है ना? जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो ऑब्वियसली जो द लैंड विच इज अंडर कल्टिवेशन, फाइन, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बट द कल्टिवेबल लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. तो उस वजह से क्या हो सकता है हमारा जो प्रोडक्शन या क्रॉप का यील्ड हो वो इतना ज़्यादा हाई ना हो. बट इफ़ वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, है ना, इफ़ वी हैव प्रॉपर स्ट्रैटेजीज for managing the crops, if we have proper techniques for the protection of crops, right? तो ये सारे strategies हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो आपका crop का production है उसको high करवा सकते हो. Okay, so that only we are going to deal in this particular part. Next point is regarding what? So the increasing the production efficiency of crops and livestock is essential या necessary. तो वही हम deal करने वाले हैं. Production and efficiency of crops. That means we are dealing with what? Agricultural practices and all.
so as to increase the yield of the crops. And we are also going to deal with livestock, which will provide us various products, useful products, which are useful for human beings. Okay. So basically for this reason we are studying this particular chapter, so that हमें ये understand होगा कि हम crop का yield कैसे increase कर पाएं, ठीक है, कौन से practices से increase कर पाएं, कैसे कौन से improvement strategies use कर सके, so that we can improve the quality of the crops, so that we can improve the quality of the crops. Fine. So by various techniques we will achieve this. Next point is regarding green revolution, right? So this green revolution is one of the very you can say this particular thing is very much advanced right nowadays, which is what you can say, which is given by this MS Swaminathan from India, है ना, जिन्होंने अपना contribution दिया है green revolution में, which deals with what, agriculture, ठीक है. एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने, जो अमेरिका के साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या करवाया है, दिस ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है, विच इज द एडवांस मेथड इन योर एग्रीकल्चर फील्ड. फाइन. नेक्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है. व्हाइट रेवोल्यूशन विच इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन. फाइन. मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, है ना. नेक्स्ट, दिस लेड टू इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. अब नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली जो हमें मिल रहा है नेचर से, सो दिस इज द मेजर सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन, जो अब मॉडर्न डेज में हमको और ज़्यादा इनका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ड्यू टू इट्स डिमांड एंड सप्लाई, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल डैमेज ऑल्सो. ऑब्वियसली इफ our strategies is not good, right? If we are using more chemicals and all, chemical fertilizer for example, pesticides and all, fine. So उससे भी क्या हो सकता है जितना improvement आपको करना हो उससे थोड़ा कम हो जाए, right? So that is why it can degrade or you can say damage your environment also. So we should use various natural type of fertilizers or you can say manures for increase in the production of crops, right? And also the food production should be increased without damaging or degrading the environment, correct? Okay. Scientific management practices like mixed farming, intercropping, right? Then integrated farming enhances the crop yields as well as also it can sustain the livelihoods. Okay. अब ये कुछ जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिए हैं इनके बारे में वी विल डील इन आवर लेटर स्लाइड्स. ओके, कि ये कौन कौन से ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स आप बोल सकते हो, तो बाय यूजिंग दोज क्रॉपिंग पैटर्न्स, बाय स्टडिंग दोज क्रॉपिंग पैटर्न्स, right, by implementing those cropping patterns in our fields or you can say in the farmer's field, that farmer can increase the production of crops, right. Now these are various what sources of what cereals, this particular carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So as we eat food, है ना, हम जो भी खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन ही मिलता है, फाइन. बट उसके भी फॉर्म्स है डिफरेंट और उसके सोर्सेस है डिफरेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स विच इज मेन न्यूट्रिशन, यू कैन से मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल सकते हो आप इसको, या मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हो, जो हमारी बॉडी को थोड़े ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है फॉर दी एनर्जी, फाइन. तो वो कौन से एग्जाम्पल्स होंगे सीरियल ग्रेन्स के, सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स और यू कैन से बाजरा, सोरगम, जवार जिसको हम बोलते हैं, राइट. तो ये जो सारे डिफरेंट व्हाट यू कैन से सीरियल ग्रेन्स है, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर दी what you can say this provide us carbohydrate, right? That is one of the major nutrient. Secondly, proteins, right? Protein is also important which we are getting through our diet only. और डाइट में हमारे कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनसे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, राइट. तो कौन से सोर्सेज होंगे ऐसे, पल्सेस रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल दाल वगैरह हो गया, देन आपका मूंग हो गया, राइट. ग्रीन ग्राम्स एंड ऑल्सो यू कैन सी gram, pea, black gram, green grams, pigeon peas, lentils, or you can say dal and all, right? So these are the major sources of protein. Fine, these are the pulses and all are the major source of protein. C for cereal, C for carbohydrate you can remember, P for pulses, P for protein you can remember. So cereal से हमें क्या मिलेगा, carbohydrates, and pulses and all से हमें क्या मिलेगा, proteins. Protein. Then next is what about fats.
So the oil seeds and all, for example, soybean, groundnut, sesame oil, right? जिससे हमको मिलता है क्या? Oil. Castor, mustard, linseed oil, right? Sunflower. So these are the sources through which we can get what? Fats, or you can say lipids. Okay, these are also required by our body. Then we have what? Vitamins. Fine. So basically जो green leafy vegetables and all होते हैं, fruits होते हैं, these are the major sources of what? Vitamins, which provide us vitamin to our body. And apart from vitamin, it can also provide some amount of what? Carbohydrate also, some amount of protein also, and some amount of fats also. Okay. Next we have what? This was mainly about the nutrients which we get from various sources, either cereals, pulses, oil seeds, vegetables and fruits. So जैसे हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स को, ऑब्वियसली मैन को दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हाट? न्यूट्रिशन. फाइन. सो द फूड क्रॉप्स, देर आर सर्टेन फूड क्रॉप्स, और रादर यू कैन कॉल्ड इट एज व्हाट? फॉडर क्रॉप्स. और क्या बोल सकते हो इसको आप? फॉडर बोल सकते हो, राइट? फॉडर क्रॉप्स which we give to the livestock, right? So for example, barseem, oats, Sudan grass, these are some of the examples through which what? The animals can also get nutrition. Okay, is that clear? Fine. Okay. Now there are different types of crops. You know, you must have studied in your lower class also about the kharif crop and about the rabi crops, right? So basically जो crops हमें मॉनसून सीजन और यू कैन से रेनी सीजन में मिलते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? खारिफ क्रॉप्स. एंड द क्रॉप्स विच वी मेनली गेट इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. ऑब्वियसली द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल should be favorable for the growth as well as production of a particular crops, right? So also apart from climatic conditions, temperature, photo periods, right? That is the duration of light, or you can say sunlight. कितना amount, कितने duration के लिए एक crop को वो sunlight मिल रहा है, photo periods and all, right? Duration for its maturation and all, that also matters for the production of crops. Okay. For their growth also, for flowering, for completion of their complete life cycle. So ये कुछ ऐसे factors हो सकते हैं जो different crops के लिए क्या हो सकता है? Different हो सकता है. It may vary from crop to crop. Fine. तो first जो मैंने बताया आपको क्या है? खारिफ crop. So the crops which are grown in rainy season. अब rainy season कब से कब तक start होता है and end होता है. So that duration क्या रहेगा? खारिफ crop के production का duration रहेगा, और you can say sowing period रहेगा. Fine. Sowing and harvesting. So from June to October, that is considered to be Kharif season, okay? And the crops which we grow in this particular period of time are known as Kharif crops. अब कुछ examples रहेंगे Kharif crops के. For example, paddy, soybean, pigeon pea, maize, cotton, right? अब ऐसे जो etc and all, right? This require much amount of water for their production, for their growth. तो उस चीज़ के लिए जो है उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना रहेगा, राइट? सो दैट इज वाई वी मेनली ग्रो दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दी खारिफ सीजन. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज विच क्रॉप्स? खारिफ क्रॉप्स. सेकेंडली वी हैव व्हाट? रबी क्रॉप्स. सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, राइट? विंटर सीजन के टाइम पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको हम बोलेंगे रबी क्रॉप्स. अब उनका ड्यूरेशन जो है आइडियली अराउंड नवंबर से लेकर अप्रैल तक, नवंबर टू अप्रैल, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रबी सीजन, in which we grow what? Crops which are favorable or which does not need that much amount of water for their production. तो उसको हम किस में इंक्लूड किया हमने? रबी क्रॉप्स में. फाइन. सो दीज आर नोन एज रबी क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सच एज wheat, gram, peas, mustard and all etc. These are the types of crops which are mainly grown in which season? Rabi season, ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल. तो जो उनका सोइंग और हार्वेस्टिंग जो पीरियड रहेगा वो इसी दौरान होना चाहिए, सो दैट वी कुड गेट गुड यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स. क्लियर? ओके. नाउ वन मोर पॉइंट. इन इंडिया देयर हैज बीन 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, राइट? अगर हम सर्वे करें तो अर्लियर टाइम्स एंड मॉडर्न डेज, ऑब्वियसली वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज इन द मॉडर्न टाइम, राइट? पहले ट्रेडिशनल में तो आपके इतने मॉडर्न मेथड्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सारे इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे
नहीं हुआ करता था, राइट। सो प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या रहेगा उस टाइम, थोड़ा बहुत लो ही होगा, यील्ड थोड़ा कम ही होगा, राइट। बट एज सुन एज ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जाएं, राइट, जो ओरिजिन हुआ ह्यूमन का, मैन का, ओरिजिन ऑफ मैन, उसके बाद ही उनको एग्रीकल्चर एंड ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन आया, फाइन। उसके बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया एंड उसके बाद आया हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइन। वी हैव वेरियस मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज through which we can get high production of crops. Clear? So you can see from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivable land area, right? But अभी nowadays तो और ज़्यादा advanced technologies हो गए हैं, तो production हमारा और ज़्यादा high हो गया है. Clear? Okay. So these are the example, right? We have already studied. Now we are going to deal with some other stages also, right? हमने अब तक क्या देखा, खाली उसका introduction part देखा. That is also related to what? Agriculture, है ना, जो farming practices होते हैं agriculture के field में, ठीक है, कैसे हम production को high कर सकते हैं and all, production increase कर सकते हैं, quality crops की improve कर सकते हैं, है ना, management proper कर सकते हैं, protection कर सकते हैं crops की. तो वो सारी चीज़ें हमें अभी कुछ स्टेजेस से पढ़ना रहेगा. सो वी हैव 3 stages ऑफ फार्मिंग, डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, राइट. हमने लोअर क्लास में एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस पढ़े हुए हैं. उसमें वी ऑल नो दैट कि सॉइल का प्रिपरेशन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, राइट. अगर आपकी सॉइल की क्वालिटी ही सही नहीं है, सॉइल का इम्प्रूव्ड टेक्सचर नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, राइट. सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं दिख रही है, एज सच डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, राइट. ऑर्गेनिक मैन्योर्स, न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो गया है, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स, राइट. ऑल्सो चॉइस ऑफ द सीड्स ऑल्सो मैटर्स, है ना. सीड्स का सिलेक्शन, सीड्स का चॉइस ऑल्सो मैटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप्स, फाइन. सेकेंडली, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स. अब जैसे हम बड़े होते हैं, राइट, सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी रिक्वायर नरिशमेंट, है ना, प्रॉपर नरिशमेंट हमें चाहिए रहता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर व्हाट, नरिशमेंट, है ना. उनके नर्चरिंग के लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए दे रिक्वायर व्हाट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. तो दैट इज आवर नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग लॉस, राइट. अब समझो आपने प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स है वो आपने यूज़ किया, राइट. हम देखने वाले हैं, अब आगे चलकर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल आए हैं जिनसे हमको जो है क्रॉप का ईल्ड या प्रोडक्शन हाई हो सकता है. क्लियर है. सो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स. अब आप जब उसको प्रिपेयर कर रहे हो आपके सॉइल को, देन आपके सीड्स का सिलेक्शन कर रहे हो, उसको सो कर रहे हो, उसकी नर्चरिंग कर रहे हो, राइट, न्यूट्रिएंट्स का एडिशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, प्रॉपर ग्रोथ मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी भी आपने अच्छा दिया है, राइट. बट अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन जब हो रहा है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑल्सो, है ना, आपको प्रोटेक्शन का नीड रहेगा उसके, फाइन. तो थ्रू आउट हार्वेस्टिंग, नॉट ओनली ड्यूरिंग दी हार्वेस्टिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, टू दी टिल दी स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑल ग्रेन्स, राइट. तब तक आपको उसका प्रोटेक्शन करना ही पड़ता है सो दैट वी कैन सेव इट फ्रॉम वेरियस लॉसेस, है ना. हम इस चैप्टर में वो भी पढ़ेंगे कि ये लॉसेस कैसे हो सकता है बाई अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स, है ना. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट, which can affect the growth of the plants, right. So उस losses से हमको हमारे crops को क्या करना रहेगा, protect करना रहेगा. So that also we are going to discuss. Fine. Now major groups of activities for improving the crop yields are what? Crop variety improvement. First of all, right, crop की variety को improve कैसे किया जा सकता है. Fine. Then क्रॉप के प्रोडक्शन को भी कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एज वेल एज यू कैन से कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है. सो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर आल्सो नेसेसरी. क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि क्रॉप की वैरायटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है, कौन से ऐसे टेक्निक्स है, राइट. अब नाउअडेज तो वी हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट.
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे ही उसमें से एक एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फाइन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस प्लांट के जीन्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन लाते हैं जिनसे उस प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, प्लस उनका जो जो सारे फैक्टर्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे या सेंसिटिव रह सकते थे, उससे भी वो टॉलरेंट हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो उनकी क्वालिटी को हमने बेटर कर दिया है, उनकी क्वालिटी को हमने इम्प्रूव कर दिया है इतने सर्टेन लेवल पे कि हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और हमें उस पर्टिकुलर प्लांट्स को हम डिजीजेस वगैरह से भी क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर है? सेकेंडली वी हैव क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रादर हम बोल सकते हैं उसको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक बार अगर आपने क्रॉप की प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की तो उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना रहेगा, हमें मैनेज भी करना रहेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन फ्रॉम विच वी आर सोइंग till we are harvesting and after that also during the storage period also, right? आप कौन से प्लेस पर उसको स्टोर कर रहे हो, that also matters. कैसे स्टोर कर रहे हो, that also matters. कौन से मेथड यूज कर रहे हो, वो भी मैटर करेगा, है ना? देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अगेन सेम थिंग कि क्रॉप्स को प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, पैथोजेंस, है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया रादर, यूजफुल वाले नहीं, पैथोजेनिक, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस हो सकते हैं, प्लांट वायरसेस, जो प्लांट को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। फाइन, कुछ वायरसेस हो गए, देन बैक्टीरिया हो गया, देन आपके फंगस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। सो ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको प्रोटेक्शन देना रहेगा, किसको, क्रॉप्स को। सो वो सारे स्ट्रेटेजीज हमारे किस में आ जाएंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। ओके, ठीक है। देन फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो, है ना। ये सारा हमने आज इंट्रोडक्शन स्टडी किया इसके बारे में कि आप कैसे जो है क्रॉप्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे। जैसे एक हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन, आगे उसको डिस्कस करेंगे। फाइन, देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑल, कि कैसे मैनेज किया जाए, एंड क्रॉप के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, कि कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, ऑल्सो फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल, राइट। उनके भी इफेक्ट से हमको हमारे क्रॉप्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यही सारे स्ट्रैटेजीज हम जब मेन पार्ट डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।